ఎన్నో వ్యయ ప్రయాసల కోర్చి ఎంతో సాహసోపేతమైనటువంటి కశ్మీర్ యాత్ర ద్వారా మేము అక్కడి తాజా పరిస్థితుల్ని మీకు అందించే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. ఈ ప్రయత్నాన్ని ఆదరించండి. ఈ వీడియోల్ని ఎక్కువ మందికి చేరవేసి కశ్మీర్లోని తాజా పరిస్థితిని వారు తెలుసుకునే విధంగా తోడ్పడండి. అండ్ జాతీయవాద జర్నలిజంతో నేషనలిస్ట్ హబ్ మనసా వాచా కర్మణ దేశహితం కోసం ఈ కశ్మీర్ ఫైల్ సిరీస్ని మీ ముందుకు తెచ్చింది. ఈ వీడియోని లైక్ చేసి కమెంట్స్ ద్వారా మీ అభిప్రాయాలు మాతో పంచుకోండి. అండ్ ఈ వీడియోల్ని ఎక్కువ మందికి రీచ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి. ఇవాళ ఎపిసోడ్లకు వెళదాం. గత ఎపిసోడ్లో కశ్మీర్లోని చారిత్రక మార్తాండ సూర్య దేవాలయం విశిష్టత గురించి తెలుసుకున్నాం. అయితే ఇస్లామిక్ ఆక్రమణదారుల చేతుల్లో ఆ దేవాలయం ధ్వంసం కావడంతో దానికి కొద్ది దూరంలోని మట్టాన్ ప్రాంతంలో మరో సూర్య దేవాలయాన్ని నిర్మించారు. ఇస్లామిక్ దాడులకు వెరవకుండా అక్కడే జీవనం సాగిస్తున్న కొంతమంది కశ్మీరీ పండిట్లే మట్టాన్ సూర్య దేవాలయాన్ని కంటికి రెప్పలా కాపాడుకుంటున్నారు. ఆ విశేషాలను ఈ ఎపిసోడ్లో తెలుసుకుందాం. ముఖ్యంగా కశ్మీరీ పండిట్లు అక్కడ ఎటువంటి జీవనాన్ని సాగిస్తున్నారు, వారి అభిప్రాయాలేంటో తెలుసుకునే ప్రయత్నం నేషనలిస్ట్ హబ్ చేసింది. అందులో భాగంగానే ఒక కశ్మీరీ పండిట్ ఆశీష్ గంజుతో మేము ముచ్చటించాం. ఆ ఇంటర్వ్యూని మీరు చూడండి. सर ये जो मंदिर है उसके ऊपर बगल में और एक पहाड़ के ऊपर एक मंदिर है, उस पर पता नहीं किन लोगों ने तोड़फोड़ की थी. तो सर अभी भी थोड़ा कहीं कहीं पे तोड़फोड़ होता रहता है. हम अपनी जो हमारी ये जन्मभूमि है, जो हमारी आस्था है, हम इसको छोड़ना नहीं चाहते हैं. सर जैसे कि रिसेंटली कहीं पे कुछ डेथ होती है तो कभी कभार यहाँ पे पंडित जी अवेलेबल भी नहीं होते हैं. మటాన్ సూర్య దేవాలయంలో ప్రస్తుతం మనం ఉన్నాము. ఈ ప్రాంతానికి దగ్గరలోనే కొంతమంది పండిట్లు కొంత నివసించిన పరిస్థితి. సో వాళ్ళు 90వ దశకంలో మారణహోమం జరిగిన టైంలో కూడా వాళ్ళు ఈ లోయని విడిచి వెళ్ళిపోలేదు బయటకి, వాళ్ళు ఇక్కడే ఉన్నారు. సో ఎందుకంటే వాళ్ళు చెప్పేది ఏంటంటే మేము ఇక్కడి ఆస్థాన్ని ఇంకా కాపాడే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం అనే మాటనే వాళ్ళు చెప్తూ వచ్చారు. అండ్ మొన్నటికి మొన్న ఒక 2 వారాల క్రితమే ఇక్కడ ఒక లెటర్ కూడా, ఒక లేఖ కూడా వచ్చింది హెచ్చరిస్తూ, ముఖ్యంగా లష్కరే ఇస్లాం పేరుతోటి ఒక లేఖ కూడా రావడం జరిగింది. ఆ లేఖలో ఇక్కడున్న పండిట్లందరూ కూడా ఈ లోయను విడిచి వెళ్ళిపోవాలని వాళ్ళు హుకుం జారీ చేశారు, హెచ్చరించారు. అయినప్పటికీ ఇక్కడ ఇంకా ధైర్యంగా కొంతమంది నివసిస్తున్నారంటే నిజంగా వాళ్ళకి సెల్యూట్ చేయాల్సిందే. అండ్ ఇక్కడ మామిడి గిరిధర్ గారు అండ్ ఆయన మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. వారితో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం మనం కూడా. అండ్ కమాన్, మటాన్ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి పండిట్ ఒకరున్నారు ప్రస్తుతం మనతోటి, ఆశీష్ గంజు గారు. వారితో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం. గంజుజీ నమస్తే. జై హింద్, కైసే ఆప్? గిరిధర్ గారు కూడా ఇక్కడే ఉన్నారు. బేసికల్లీ ఇక్కడ ఒక విషయం ఏంటంటే, ఒక 2 వారాల క్రితమే ఒక హెచ్చరిక లేఖ కూడా వచ్చింది. అయినప్పటికీ ఇప్పుడు కాదు, పెద్ద మారణహోమం జరిగిన టైంలో కూడా 1990sలో జనసైడ్ జరిగిన టైంలో కూడా ఈ లోయను విడిచి వెళ్ళని కుటుంబంలో వీరిది ఒకరిది. आशीष जी आप कैसे हो, हालात कैसे? सर बढ़िया है. अभी हालात कभी कभार ख़राब हो जाते हैं तो देश ये सब देखना पड़ता है यहाँ पे. सर अच्छा, ये मंदिर को आप ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं अभी तक, आप जैसे लोगों ने? बिल्कुल सर, हमारी यहाँ एक टीम चल रही है. जितना हमारे यहाँ से पॉसिबल होता है कि कुछ मंदिर ख़राब हुए हैं तो कोशिश कर रहे हैं कि हमको उन मंदिरों को ठीक किया करें. अच्छा. तो अभी जैसे कि ये मंदिर है कि इस मंदिर को भी हम देखते रहते हैं. अच्छा, कितने लोग रहते हैं इधर पंडित लोग? सर यहाँ पे कम से कम जैसे कि डेटा के हिसाब से कुछ 800 ఫ్యామిలీస్. ఆశీష్ గంజు గారితో ఇంటర్వ్యూ ప్రశాంతంగా కొనసాగుతున్న సమయంలో ఒక్కసారిగా ఆయన హావభావాల్లో కొంత తేడా కనిపించింది. మాటలు తడబడ్డాయి. కారణం ఏంటా అని పరిశీలిస్తే అక్కడున్న కొంతమంది గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు ఇంటర్వ్యూ గురించి మాట్లాడుకుంటూ ఉండడం, సెల్ ఫోన్లలో ఎవరికో ఈ ఇంటర్వ్యూకి సంబంధించిన విశేషాల్ని తెలియజేసే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండడం, దగ్గరకొచ్చి ఇంటర్వ్యూను డిస్టర్బ్ చేయాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నట్టుగా కనిపించింది. దీంతో ఆశీష్ గంజు కంగారు పడ్డారు. అయితే పరిస్థితిని గమనించిన మామిడి గిరిధర్ గారు సదరు గుర్తు తెలియని వ్యక్తిని మందలించారు. डेटा के हिसाब से कुछ 800 ఫ్యామిలీస్. Stop it. Why are you coming here? What is your business? కశ్మీరీ పండిట్ల భయానికి ఇది కూడా ఒక కారణమే. బయట వ్యక్తులు, మీడియా సంస్థలు, ప్రభుత్వ అధికారులతో ఎవరు మాట్లాడినా కొన్ని ఉగ్ర సానుభూతి పరుల కళ్ళు
నిత్యం పరిశీలిస్తూ ఉంటాయి. అందుకే కశ్మీరీ పండిట్లు ప్రతి విషయంలోనూ ఆచితూచి అడుగులు వేస్తూ ఉంటారు. जैसे कि पुराने डेटा के हिसाब से जो कहा जा रहा है कि 800 फैमिलीज यहाँ पे कश्मीर में रह रहे हैं सर. 800 फैमिली. जी. अच्छा. 800 पूरा कश्मीर वैली में 800 वो फैमिलीज जो अभी तक यहाँ से निकले नहीं, जिन्होंने निकले पलायन नहीं। नहीं किया हुआ है. अच्छा. ओके. जी सर. ओके. तो जैसे कि अभी बहुत सारे आए हैं जिनकी नौकरियां लगी हैं, जैसे जो माइग्रेट हुए थे, कम से कम वो भी 5-6 हज़ार वो भी अभी आए हुए हैं. अब कितने लोग हैं इस एरिया में? सर इस शहर में कम से कम होंगे 600-700 फैमिलीज़ होंगे अभी. 6-7. जी सर. किराए पे ही रहते हैं उनका. जैसे कि आसपास यहाँ पे हमारे नेबर्स हैं, उनके घर में रहते हैं किराए. आशीष जी, 90 दशक में जो लोग यहाँ से निकले थे, आप निकलना मुनासिब नहीं समझा. आपके बगल में नाड़ी मार्ग में इतना बड़ा कांड हुआ, तो फिर आप उस काल पे इस सिचुएशन को कैसे आपने हैंडल किया? फिर आप कैसे उस मतलब सिचुएशन से आप अपने आप को मैनेज कर पाया? फिर उस मतलब बहुत टफ सिचुएशन में से अब बाहर कैसे निकले? सर तब बहुत हमें खौफ भी था, हम ज़्यादा बाहर नहीं निकलते थे. तो अभी धीरे धीरे हमने सोचा कि नहीं, अगर हमें यहाँ रहना है तो डर को थोड़ा हमें साइड में रखना चाहिए. तो अभी तक सर बीच में अगर कहीं कुछ होता है, लेकिन हम अब जैसा भी अब हालातें हों तो हम बर्दाश्त कर लेते हैं. उस समय में जो वहाँ कांड हो रहे थे आजू बाजू में, आपके गांव में नहीं हुआ था? आपके साथ नहीं हुआ था या सर, आपकी बरादरी में नहीं हुआ था? नहीं सर, हम इतना मैं कह सकता हूँ कि सारे गलत नहीं होते थे, क्योंकि कुछ जगहों पे ज़्यादा मतलब किलिंग हुई, कुछ जगहों पे नहीं हुई, कुछ जगह सेफ थे जहाँ से किलिंग नहीं हुई. तो हमारे साइड से उतनी ज़्यादा किलिंग नहीं हुई, तो इसी के कारण तो हम वहाँ पे रुके सर. आपका उम्र क्या है? गुजारा कैसा चल रहा है? सर मेरी उम्र जो है अभी 27 साल. 27 बोले तो 27. इससे बाद ही पैदा हुए. हाँ बिल्कुल सर. लेकिन जो पुराने बुजुर्ग उनके जो कभी कभार कहते रहते हैं कि ऐसा हुआ था कि उन्होंने मतलब किसी रिश्तेदार को मारा था, ऐसे उनसे थोड़ा ये सब सुनने को आपको मिला. पता है पूरा? नहीं सर पूरा पता नहीं है, तब मैं बिल्कुल छोटा ही था. लेकिन ये भी मुझे पता है कि मुझे घर वाले कहते हैं बाहर ज़्यादा मत घूमो, वहाँ से कोई घूमता होगा या गोली या कुछ चलेगी. तो इतना सब मुझे थोड़ा याद है. तो बाद में जो भी हुए हैं, जैसे 92 में हुआ, बाबरी मस्जिद कांड हुआ, राइट्स हुए हैं, दंगे हुए थे, उस समय में भी आप महफूज थे, आप सेफ थे? आपका नहीं तो कुछ तकलीफ था, कुछ टेंशन था? नहीं सर, ऐसा मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ कि कहाँ कभी कभार बाहर कुछ हो जाता है तो, लेकिन कहीं कहीं कुछ हो जाता है यहाँ पे. सर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर किसी जगह पे ये सब होता है. जैसे कि अभी रिसेंटली किलिंग हुई श्रीनगर में, शोपियां में हुई, और जैसे कि काकरन में हुई. तो ऐसे ऐसे जगहों पे सर 2 दिन पहले ही एक मंदिर को भी जला हुआ है ना, जला दिया ना सर. ये जो मंदिर है इसके ऊपर बगल में और एक पहाड़ के ऊपर एक मंदिर है, उस पर पता नहीं किन लोगों ने तोड़फोड़ की थी. तो कब हुआ ये? सर ये 2-3 महीने पहले की बात. हाँ. तो इसके बाद फिर कुलगाम में 1-2 जगहों पे हुआ था. तो ऐसे इनपुट्स आ रहे थे कि मतलब अभी भी रुके नहीं है? रुके नहीं सर कुछ तो कुछ तोड़फोड़ हो रहा है अभी भी? सर अभी भी थोड़ा कहीं कहीं पे तोड़फोड़ होता रहता है. तो आपका गुजारा कैसा हुआ फिर 90 से लेके आज तक? इतने मतलब माहौल में जो पंडित का रहना ही बहुत मुश्किल है, तो आपका गुजारा कैसे चला? फिर खेती-बाड़ी की कैसे किया आपने? सर यही हमारा खेती बाड़ी का चलता रहता है, तो इसी से हमारा गुजारा हो जाता है सर. तो अभी जैसे कि हम जब तक हम यहाँ रहे, अभी तक हमने किसी ने यहाँ पे पूछा नहीं है सर, चाहे वो कोई भी सरकार हो यहाँ पे कश्मीर में, तो अभी तक हमें किसी ने पूछा तक नहीं है. तो मतलब आर्टिकल 370 का संशोधन करने से पहले
और उसके बाद में ज़्यादा फ़र्क आपको महसूस नहीं हो रहा है? सर मुझे अभी लगता है कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि हमारे लिए कुछ हमें लगता है कि चाहे 370 था या ना था, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रही है सर, क्योंकि हम जैसे ही थे वैसे ही हैं हम अभी भी सर, ये अभी भी अभी भी सर। तो जो खंडर पड़ी मंदिर है उसको पुनरुद्धारण करने के लिए सरकार से कोई पहलू मिला, कोई सरकार से कोई बातचीत हुई, कुछ बताया, या मतलब आपके सुविधा के लिए सरकार ने पंडित समाज से कुछ बात किया? आपका कुछ समाज है, मतलब कुछ भी नहीं हो रहा है मतलब? सर हर कोई मतलब चाहे वो हमारे लीडर हो या कोई भी हो, हर कोई कह रहा है कि हम काम कर रहे हैं कम्युनिटी को बेटरमेंट लाने के लिए, लेकिन सर ग्राउंड पे कुछ दिख ही नहीं रहा है। ग्राउंड पे अभी सर कुछ दिख नहीं रहा है। बाकी तो अभी ये मैं यहाँ पे देख रहा हूँ सर प्रैक्टिकल। उम्मीद क्या रखते हैं आप? सरकार से उम्मीद क्या है आपका? सर सरकार से हमारी उम्मीद है कि जो आप अगर बाकियों के लिए कर रहे हैं, हमारे लिए भी थोड़ा सा कुछ मेहरबानी हम पे भी किया कुछ हो जाए। हमने बहुत सफ़र किया है यहाँ पे, बड़े मुश्किल से हमने यहाँ दिन काटे हैं सर, तो अगर अभी भी नहीं हुआ तो फिर हमारा यहाँ रहने का कोई फ़ायदा ही नहीं है सर। आप लोग ही ये कश्मीर का वो आस्था को अभी तक प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अभी तक लेके आ रहे हैं, आप लोग ही हैं। जी सर बिल्कुल, अगर यहाँ पे कश्मीरी पंडितों का नाम है वो हम लोगों से ही है, ये तो इसीलिए हम श्री नरेंद्र मोदी जी से, अपने एलजी सर से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे यहाँ जो कम्युनिटी रह रही है उनके बारे में देखा जाए। हाँ, जो 800 परिवार आपने जो बता रहे हो 90 दशक से अभी तक है, या बाद में कुछ लोग वापस भी आए होंगे? सर फैमिलीज तो काफ़ी ज़्यादा अभी आ रही है वापस आ रही है, लेकिन तो वो सब इकट्ठा आप एक कमेटी क्यों नहीं बना सकते हो? सर ऑलरेडी कम्युनिटी चल रही है, लेकिन उनके आगे कुछ काम ही नहीं हो रहा है, तो वो इसीलिए वो फिर आगे नहीं जा पाते हैं सर। तो बाकी देश, बाकी भारत से आपका क्या उम्मीद है? उससे क्या सहायता मांगते हो, या क्या करना चाहिए बाकी देश? सर उनसे हमारी यही रिक्वेस्ट है कि जो हमारे यहाँ पे मंदिर है उनको ठीक किया जाए, और जो यहाँ हमारे यहाँ कश्मीरी पंडित पहले से रह रहे हैं उनके लिए भी कुछ देखा जाए और सोचा जाए सब। और उनसे भी मेरी यही मैसेज है कि वो भी हमारे यहाँ कश्मीर में आए और अपने आप बता रहे कि देखने के लिए आप उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन पर्टिकुलरली क्या चाहिए कश्मीर पंडितों को बोले तो क्या बोलते हैं आपने? पर्टिकुलरली क्या है? रोज़गारी या क्या है? सर यही रोज़गारी सबसे बड़ी चीज़ है सर। देखें यहाँ पे तो ज़्यादा कुछ बिज़नेस प्लान भी नहीं है कि हम जाके वहाँ पे जॉब नौकरियाँ कर सकें। देखिए सर पहले हमारे कश्मीरी पंडित में क्या है कि नौकरी के बिना हमें शादी भी नहीं मिलती है, तो ये चलो अगर ये दूसरा हम पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूथ हैं जो ओवर एज हुए हैं जिनकी अभी तक शादियाँ नहीं मिल रही है, वो इसी के कारण, क्योंकि वो बेरोज़गार है, वो खुद नहीं कमा सकते हैं वो, और अपने जो अपने बच्चे होंगे कल उनको क्या खिलाएंगे सर? नहीं, आप 30 साल से इधर ही हैं, आप बाहर जाए तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है, लेकिन आप नहीं गए। क्यों नहीं गए बोले तो आपका बड़ा रीज़न क्या है? कश्मीर की आस्था पंडित समाज के लिए क्यों नहीं निकले आपने? क्या बताते आप देश को? सर हम अपनी जो हमारी ये जन्मभूमि है, जो हमारी आस्था है, हम इसको छोड़ना नहीं चाहते हैं सर। सुपर। तो सर यही हमारा आज का। तो आपके आस्था कैसे बचा रहे हो? क्योंकि आपको सिखाने वाला तो कोई है ही नहीं है, मंत्र सिखाने के लिए कोई है ही नहीं है। जैसे जनेऊ का जो होता है वो करने के लिए कहीं से बाहर से आपको पंडित को लाना पड़ेगा, मगर वो चले जाने के बाद हर दिन क्या करना है आपको पता नहीं है, पूजा पाठ तो मालूम नहीं है, कोई सिखाने वाले नहीं है। तो फिर जो आपकी पुरखों का जो परंपरा है वो आप कैसे कायम रख सकते हैं?
सर जैसे कि रिसेंटली कहीं पे कुछ डेथ होती है तो कभी कभार यहाँ पे पंडित जी अवेलेबल भी नहीं होते हैं सर, इतनी दिक्कतें हैं हमें यहाँ पे, मतलब हर किसी चीज़ से हमें यहाँ पे दिक्कतें हैं। उम्मीद रख सकते हैं ना बाकी देश से आपको आके सनातन धर्म का ही शिक्षा दें, उनका ही आपका कुछ सहायता करें? देखिए सर, जैसा कि देखने को मिल रहा है जी, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे सरदार हो, हर किसी के अपने अपने मतलब जो धार्मिक, चाहे मान लीजिए कि क्लासेस या मतलब अपने धर्म के रिलेटेड जो नॉलेज है वो उन तक पहुंच जाती है। लेकिन हम जो यहाँ पे हैं तो बहुत कम हमें ये सब मिलता है यहाँ पे। जो हम हासिल करते हैं, अगर करते भी हैं, वो इंटरनेट थ्रू से, लेकिन प्रैक्टिकल में हमें ये सब नहीं मिल रहा है। आपके बच्चों को महाभारत रामायण ये सिखाने वाले कोई है नहीं है? सर है, लेकिन बहुत कम है। तो फिर हाँ। कैसा, मतलब ये धर्म परिवर्तन अभी भी कुछ होता है? कुछ सर- लोग धर्म बदलते हैं अभी भी? नहीं सर, जैसे कि जिसको अपने धर्म के बारे में ज़्यादा पता नहीं, वो किसी भी धर्म में जा हो रहा है सकता क्या? है। कुछ चीज़ें हुए हैं ऐसे? सर पहले हुआ था, लेकिन अब इस बार अब नहीं हो रहे हैं सर। जैसे पाकिस्तान में होता है, हमारी औरतों को, बच्चियों को उठा के लेके जाते थे वो लोग, धर्म परिवर्तन करके उसके शादी करके फिर बच्चियां, मतलब लेडीज़ जो है उसका संख्या कम कर देते हैं। ऐसा कोई चीज़ वाकयात इधर कुछ हुआ है? नहीं मतलब लव जिहाद नाम के पूरे देश में फेमस है? नहीं सर, ऐसे देखिए सर, अगर देखा जाए कि अगर यहाँ पे कहीं पे डेथ होती है तो जो हमारे नेबर्स हैं वो भी हमें इसमें हाथ बटाते हैं। ओके। सच जो है वो मैं कि जैसे कि रिसेंटली कहीं पे कुछ डेथ होती है, अब कुछ मतलब लोग ऐसे हैं जो नफ़रत फैलाते हैं आपस में, तो वैसे भाईचारा फिर भी बहुत अच्छा है सर। अच्छा, हाँ राइट। थैंक यू वेरी मच आशीष जी। पूरा भारत आपके साथ है, पूरा भारत आपके साथ है। नेशनलिस्ट हब बोल के ये चैनल पे ही मैं बता रहा हूँ कि पंडित लोग कश्मीर वैली से बता रहे कि आप लोग आइए, सपोर्ट कीजिए, सरकार को बताइए कि इनको प्रोटेक्ट करना है। యా చూసారు కదా, అది బేసికలీ ఆశీష్ గంజు చెప్తున్న మాట. వయసు 28 సంవత్సరాలు అని చెప్తున్నారు. బట్ నాకు తెలిసి 32 ఏళ్ల క్రితం జరిగినటువంటి మారణ హోమం తర్వాత కూడా వాళ్ళ కుటుంబం ఇక్కడే ఉంది. అప్పుడు ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ 700-800 కుటుంబాలు ఈ కాశ్మీర్ వ్యాలీ నుంచి ఇంకా బయటకు వెళ్ళలేదు, వాళ్ళందరూ ఇక్కడే ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు. అయితే ఈ 30 ఏళ్లలో ఎంత దారుణమైన స్థితుల్ని చూసి ఉంటారనేది నేను అర్థం చేసుకోగలను, మనకందరికీ తెలిసిందే. అంత పరిస్థితిలో కూడా వాళ్ళు వ్యాలీని విడిచి వెళ్లకుండా ఇక్కడ ఆలయాల్ని పరిరక్షించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు, ధర్మాన్ని పరిరక్షించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఇంకా మతాంతీకరణ జరగకుండా వాళ్ళని వాళ్ళు ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడమే కష్టంగా ఉన్న టైంలో వాళ్ళు ధర్మాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారు. అట్లాంటి వాళ్ళని ఏమనాలి, వాళ్ళ కోసం ఎలా నిలవాలి? సో భారతదేశం అంతా దీని గురించి ఆలోచించాలి. ముఖ్యంగా తెలుగు ప్రజలు ఎవరైనా ఉంటే కనుక డెఫినెట్లీ ఆశీష్ గంజు లాంటి పండిట్ల కోసం ఒక్క క్షణం కేటాయించి వాళ్ళ కోసం మనము ప్రార్థన చేద్దాం. చూస్తున్న నేషనల్ స్టాప్ మనసా వాచ కర్మణ దేశ హితం కోసం.